Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again, I have come along with some of the important concepts of physics of class 12. In this particular video, at first I would like to briefly discuss over the concepts delivered in the previous lectures. So far, we discussed the electric field due to different charge configuration. Initially, we discussed the electric field due to point charge, and that was equal to kq divided by r square. Thereafter, we discussed the electric field due to continuous charge body. And in continuous charge body, we considered the finite charge line. And due to finite charge line, there was an electric field in x direction as well as in y direction. In x direction, it was equal to k lambda divided by d into sine theta 1 plus sine theta 2. In y direction, it was equal to k lambda divided by d into cos theta 2 minus cos theta 1, where theta 1 and theta 2 were the angle formed from the top and bottom position of the line, and d was the perpendicular distance to the line, whereas lambda was the charge density, that is equal to charge per unit length. In finite charge line, we considered two cases. One was therefore infinite line and another was therefore semi-infinite line. So due to infinite line, the electric field was there only in x direction. There was no electric field in y direction. So in x direction, the electric field was equal to 2k lambda divided by d. Due to semi-infinite line, the electric field was there in x direction as well as in y direction. In x direction, the electric field was k lambda divided by d, and in y direction, the electric field was k lambda divided by d also. So the net electric field was equal to k lambda divided by d under root 2. Apart from this, we discussed about the electric field due to charged ring. So we calculated the electric field at the center of the charged ring. At the center of the charged ring, the electric field was equal to 0. And at any point on the axis of the charged ring was equal to kqx divided by r square plus x square to the power 3 by 2. Just remember the last important point which is being used in this lecture. Have you got my point? So last important point was there, electric field at any point on the axis of the charged ring, that was equal to kqx divided by r square plus x square to the power 3 by 2, where r is the radius of the ring and x is the separation in between the center of the ring and the point where we calculate the electric field. Have you got my point? Now in this lecture we will study or we will discuss about the electric field due to infinite sheet. So first of all we will understand what is the meaning of infinite sheet. सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और उस रेक्टेंगुलर लेमिना का कुछ लेंथ होगा और कुछ विड्थ होगा. अगर मैंने उस रेक्टेंगुलर लेमिना का लेंथ और विड्थ को इनफाइनाइट कर दिया तो वो रेक्टेंगुलर लेमिना इनफाइनाइट शीट कहलाएगा. तो उस इनफाइनाइट शीट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट पे. उसी तरीके से अगर मैंने बोला एक डिस्क है हमारे पास और डिस्क का जो रेडियस है वो फाइनाइट है, तो वो डिस्क क्या कहलाएगा? फाइनाइट डिस्क कहलाएगा. लेकिन अगर उसी डिस्क का रेडियस अगर इनफाइनाइट कर दें तो उसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्क भी बोल सकते हैं और इनफाइनाइट शीट भी बोल सकते हैं. हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग क्या करें, अगर हमें इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सबसे पहले फाइनाइट डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उसमें रेडियस की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? इनफाइनाइट शीट की वजह से. हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट. सो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट. तो मैंने अभी जैसे बताया इनफाइनाइट शीट्स को के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करें? डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें. डिस्क की वजह से. तो ये हमने डिस्क बनाया जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस मैंने बोला जिसका रेडियस है r, कैपिटल R. वेरी गुड. ये डिस्क है हमारा. हैव यू गॉट माय पॉइंट? और इस पॉइंट से, इसके सेंटर से लेकर इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका सेपरेशन कितना है? x. क्लियर? और इस डिस्क की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है. तो
आप लोग बोलोगे अब तक हम लोग लैम्डा कूलम पर मीटर की बात कर रहे थे सर, अभी डिस्क में हम लोग सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग लाइन की बात कर रहे थे तो हम लोग लैम्डा ले रहे थे, और लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, और चार्ज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, लैम्डा इनटू लेंथ। स्मॉल चार्ज की जब हम लोग बात कर रहे थे तो स्मॉल लेंथ इनटू लैम्डा, लैम्डा इनटू डीएल, क्लियर। लेकिन हम लोग डिस्क की जब बात कर रहे हैं तो डिस्क का मतलब हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। डिस्क में क्या फॉर्म होगा, लेंथ लाइन फॉर्म होगा या फिर एरिया फॉर्म होगा, एरिया फॉर्म होगा। तो जब एरिया फॉर्म होता है तो चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं, सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ था क्योंकि लाइन था, यहाँ पर चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर स्मॉल चार्ज बोले तो स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू स्मॉल एरिया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये हम लोग लिखेंगे। अच्छा, आप फिर हम लोग यहाँ पर क्या देखें, स्मॉल चार्ज, हमें ये बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हमें कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल चार्ज निकालेंगे, और स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले हमें स्मॉल चार्ज निकालना चाहिए, क्लियर है? तो अब स्मॉल चार्ज कैसे निकाला जाए, ये तो डिस्क है। तो सबसे पहले देखो डिस्क को कैसे बना सकते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं एक छोटा सा रेडियस लिया, जीरो से बड़ा लेंथ का एक रेडियस लिया, और उस रेडियस से हमने रिंग बनाया, और उससे थोड़ा बड़ा किया फिर रिंग बनाया, उससे थोड़ा बड़ा किया फिर से रिंग बनाया, उससे थोड़ा बड़ा किया फिर से रिंग बनाया, उससे थोड़ा बड़ा किया फिर से रिंग बनाया, और ये सारे रिंग को एक साथ रखा तो क्या बनेगा, डिस्क। इसका मतलब है अगर आपको डिस्क बनाना है तो इसको छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर दो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर डिस्क बनाना है तो इसको छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर दो, और किसी एक रिंग की वजह से जो चार्ज मिलेगा वो छोटा सा चार्ज मिलेगा, और छोटे से चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे और उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस डिस्क में हम लोग एक रिंग बना ले। तो इसका एक फ्रंट व्यू हम लोग बना लेते हैं। इस डिस्क का क्या है, एक फ्रंट व्यू बना लिया हमने। ये डिस्क हमने यहाँ पर, ये जो पिक्चर बनाया वो ऐसा है, यहाँ है फ्रंट व्यू, है ना। तो इसका फ्रंट व्यू हमने यहाँ पर बना लिया, ये डिस्क है ना। और इस डिस्क का जो रेडियस है हमने क्या माना, इस डिस्क का रेडियस हमने आर माना, क्लियर। अब इस डिस्क में हमने क्या किया, एक छोटा सा रिंग ले लिया। अच्छा, ये रिंग हमने छोटा सा क्यों लिया, मैंने अभी बताया इस डिस्क को बनाने का क्या तरीका है, छोटा छोटा रिंग लो और उस रिंग से हम लोग पूरा डिस्क बना लेंगे। वेरी गुड। इस छोटे सा रिंग लिया और इस छोटे से रिंग का जो रेडियस है वो कितना, स्मॉल आर, और इस रिंग का जो विड्थ है उसको हमने बोला डी आर, स्मॉल डी आर। वेरी गुड। इसका मतलब ये जो फ्रंट व्यू मैं यहां पे भी बना दे रहा हूं, क्लियर। ये मतलब इसका जो रेडियस है, इस स्मॉल रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसका जो विड्थ है वो क्या है, डी आर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, जो हमें स्मॉल रिंग मिला, इस स्मॉल रिंग का अगर हम चार्ज निकाल लें तो स्मॉल चार्ज हो जाएगा। तो स्मॉल चार्ज की वजह से हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले हम इस स्मॉल रिंग का, अगर मैं इस स्मॉल रिंग को मैं यहां पर ब्रेक कर दूं, ब्रेक करके और इसको स्ट्रेच कर दूं, खोल दूं ऐसे, तो एक लाइन बन जाएगा। वो एक लाइन बन जाएगा ऐसा, क्लियर। तो जब ये लाइन बनेगा तो इस लाइन का लेंथ कितना होगा, हमें मालूम है जो रिंग का सरकमफ्रेंस होता है वही इस लाइन का लेंथ होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि इसको जब स्ट्रेच कर दिया तो इस सरकमफ्रेंस को ही स्ट्रेच किया आपने, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ आपका डी आर है। तो मैं बोलूं कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, ये डी आर है, स्मॉल विड्थ है, इसलिए जो एरिया मिलेगा वो स्मॉल एरिया मिलेगा। स्मॉल एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। वेरी गुड। स्मॉल एरिया मिल गया। हमें स्मॉल चार्ज चाहिए, तो स्मॉल चार्ज का जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वो क्या लिखा है, सिग्मा इंटू डी ए, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब ये जो चार्ज है वो किसका चार्ज है, स्मॉल रिंग का चार्ज है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इसका चार्ज आपका dq है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा जो रिंग बनाया,
ये जो रिंग बनाया, इसका जो रिंग का जो चार्ज है वो कितना है, dq, और इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो सेपरेशन कितना है, x है। वेरी गुड। मतलब इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें। तो याद कीजिएगा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, अगर x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस रिंग का चार्ज अगर q है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये निकाला था। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और जो हमने देखा था रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा एक्स डायरेक्शन में होता है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये तो रिंग है ना, लेकिन इस रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्या है, डी क्यू है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डी क्यू है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो डी ई मिलेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और डी की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखिए, डी की वैल्यू होगी के, क्योंकि ये भी रिंग है, लेकिन क्यू की जगह पर यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू एक्स, सेपरेशन तो एक्स ही है, यहाँ पर भी सेपरेशन एक्स था, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर वाज द रेडियस ऑफ द रिंग, लेकिन इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है, इसलिए हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। मतलब इस रिंग की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वो कितनी है, k इंटू डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक कितना, k की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq की वैल्यू हमने कितना निकाला है, dq की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई r, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, यहाँ उसके अलावा क्या है, x है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस 2 पाई से ये कैंसल, 2 से यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूं मैं। तो अगर मैं बोलूं कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है x, और क्या बच गया r इंटू डी आर, r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेरी गुड। अभी तो हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी इंटीग्रेट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इस साइड भी इंटीग्रेट कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन इंटीग्रेशन हम किसके फॉर्म में करेंगे, यहाँ पर अगर डी थीटा होता तो एंगल के फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ डी आर है, मतलब रेडियस के फॉर्म में करेंगे। तो आप सोचो, इस डिस्क को बनाना है रिंग के हेल्प से, तो इसका रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, पूरे डिस्क के लिए 0 से कैपिटल आर, तभी तो पूरा डिस्क बन पाएगा। मतलब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें, रेडियस के फॉर्म में करना है, इसलिए इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से कैपिटल आर तक। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इस साइड इंटीग्रेशन किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। वेरी गुड। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट कौन कौन सा है। तो आप ध्यान से देखें, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट है ना, x इन दोनों के बीच का, कोई भी रिंग लो, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है x, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब सिग्मा x कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर। अब देखते हैं r कांस्टेंट है या नहीं। r, अगर मैंने बोला रिंग मैंने यहां पर बनाया तो ये रेडियस है ये वाली, लेकिन अगर रिंग थोड़ा बड़ा बनाते तो रेडियस और बड़ा हो जाता, रिंग को छोटा बनाते रेडियस छोटा हो जाता। मतलब रेडियस क्या वेरिएबल है, इसलिए हम लोग रेडियस को इंटीग्रेट करेंगे, आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r। अब जब भी इस तरीके का कभी भी आए कंडीशन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं।
तो हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर मान लिए लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर वेरिएबल है, मैंने अभी बताया, एक्स कांस्टेंट है, टी वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा, टी वेरिएबल होगा क्योंकि टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एक्स, इसमें आर वेरिएबल इसलिए टी भी वेरिएबल होगा। तो हमेशा डिफरेंशिएशन किस चीज का होता है, वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, 2r dr, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या, 2t इंटू डी टी, सो 2 से 2 कैंसल, r इंटू डी आर इज इक्वल टू t इंटू डी टी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब हमने क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर के फॉर्म में रखा है। जब हमारा ये आर डी आर था और ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो लिमिट किसके फॉर्म में था, रेडियस के फॉर्म में था। लेकिन अगर मैंने इसको टी मान लिया तो अब लिमिट किसके फॉर्म में होना चाहिए, टी के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो ये क्या था, ये जीरो से आर, मतलब रेडियस था ये जीरो, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन r was equal to 0, जब r 0 था तो t कितना होगा, तो t हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो है, सो t इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये लोअर लिमिट जब r 0 है तो t क्या हो जाएगा, x। अपर लिमिट क्या है, जब r कैपिटल R है, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, जब r कैपिटल R होगा, मतलब इसमें हम पुट करेंगे r की जगह पर कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। सो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब t को क्या लिखेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जब हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर के फॉर्म में रखा, तो लिमिट भी हमें टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब r 0 था तो t कितना है, x है, जब r कैपिटल R था तो t कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने ये देख लिया। अभी हमने क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लिया है, यहाँ पे क्या माना है, टी स्क्वायर। तो हमने लिखा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर डी आर की वैल्यू कितनी आई, आर डी आर की वैल्यू टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ टी टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना। ये t है, t से यहाँ t टू द पावर 3 कैंसिल, तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। लिमिट क्या है, जब r 0 था तो t क्या है, x है। अब x के t के फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पर t कितना आ रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर x, यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने बोला 1/t स्क्वायर हो जाएगा, 1/t स्क्वायर को हम t टू द पावर -2 इंटू डी टी लिख सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा t टू द पावर -2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर -2 प्लस 1, सो -2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये t टू द पावर -1, तो माइनस t टू द पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/t, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। तो यहाँ पर हम -1/t पुट कर दें, सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1/t, लिमिट x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, जब भी लिमिट बैठाना होता है तो हमें क्या करना होता है, ये जो नेगेटिव पोलैरिटी होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको हमने बाहर कर लिया, तो नेगेटिव टर्म को बाहर कर लिया, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/t, ये x अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पुट करें t की जगह पर क्या होगा, 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
माइनस, यहाँ टी की जगह पर क्या पुट करें, एक्स। वेरी गुड। अब ये माइनस एक्स को अंदर ले जाए, तो जब माइनस एक्स को आप अंदर ले जाओगे जब ये माइनस एक्स को आप अंदर ले जाओगे तो ये क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस एक्स को अंदर, तो माइनस एक्स को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये 1 हो जाएगा, मतलब प्लस 1। तो 1 को पहले कर ले, 1 माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक डिस्क की वजह से है। ये डिस्क जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस आर है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां से पी डिस्टेंस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका सेपरेशन कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे जो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, रिंग से, और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में ही होगा, मतलब अवे फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये तो हमने फाइनाइट डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो मैंने बोला था जब इनफाइनाइट करना हो तो इसका रेडियस को क्या करो, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट सीट, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी उसमें पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देख के, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x, यहाँ r इन्फिनिटी मतलब ये पूरा पार्ट इन्फिनिटी, सो x डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट सीट की वजह से कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम बोर्ड में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। कभी भी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जाता है। तो ये जो इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से भी निकालेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। गॉस लॉ के हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो बहुत आसानी से निकलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, उसके बाद आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट किया और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। तो ये हम गॉस लॉ में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट होती है वो कितना होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम बोर्ड में जो पूछा जाता है वो गॉस लॉ के हेल्प से पूछा जाता है। Have you got my point? According to competitive exam हमें डिस्क के बारे में भी जानना चाहिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो गॉस लॉ में पढ़ेंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सीट की वजह से निकालेंगे, वहां पर बहुत आसानी से निकलेगा। वेरी गुड। लेकिन हमें जान लेना चाहिए किसी भी चीज को। तो हमने क्या देखा, इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सीट, away from the seat। मतलब मैंने बोला कि एक इनफाइनाइट सीट है, ये इनफाइनाइट सीट है ना। ये डिस्क भी हो सकता है और कोई भी लेमिना हो सकता है। इनफाइनाइट सीट की वजह से मैंने पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की ओर, तो यहाँ पर बाहर की ओर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी आप देखो इसकी वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे यहाँ से यहाँ का सेपरेशन और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी, चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सिग्मा एक कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है।
मतलब ये क्या है, एक्स पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो तब भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, यहाँ पूछो तब भी सिग्मा डिवाइड, यहाँ पूछो तब भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो इनफाइनाइट सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैंने बोला कि ये इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, मैंने पूछा यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैंने पूछा यहाँ पे बताओ इसके पीछे, तो इसके पीछे इधर हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, ये अगर प्लस सिग्मा है तो बाहर निकलेगी, तो वो उधर, और ये किधर, इधर, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज सीट है, इसकी डेंसिटी नेगेटिव है माइनस सिग्मा, तो मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सीट होगी। लेकिन होगी कितनी, होगी तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो उतनी रहेगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक्स पे डिपेंड नहीं करता। हैव यू गॉट माय पॉइंट? एक्स पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पे ले रहे हो। तो ध्यान से देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज सीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज सीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सीट होगा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इनफाइनाइट सीट की वजह से पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है वो डाइपोल का कॉन्सेप्ट है ना। तो हमें डाइपोल पढ़ना है, व्हाट इज डाइपोल, एंड डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, डाइपोल क्या है। अच्छा, डाइपोल के नाम से ही लगता है क्या, डाइपोल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डाई प्लस पोल, है ना। और डाई का मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, टू, और पोल का मतलब पोलैरिटीज, पोलैरिटी, है ना। मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस d से, तो ये जो होगा ये हमारा डाइपोल कहलाएगा। डाई मतलब टू, मतलब टू चार्जेस, पोलैरिटी यहां पर जो हम लोग ले रहे हैं अपोजिट पोलैरिटी का। क्लियर है? लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इसका चार्ज माइनस क्यू होगा। यहां पर हम लोग कैसे समझते हैं डाइपोल को, यहां पर दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्यू है और ये भी क्यू है, लेकिन पोलैरिटी अलग है, और दोनों चार्ज के बीच में एक सेपरेशन डी है। क्लियर है? तो डाइपोल को हम डिफाइन जो करते हैं उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डाइपोल कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस of opposite polarity with same magnitude separated with the distance d. Once again I am repeating it. The dipole can be defined as the combination of two charges having same magnitude and opposite polarity separated with the distance d. That is known as dipole. Clear? तो डाइपोल तो हमने जान लिया, लेकिन डाइपोल के अलावा अच्छा, ये डाइपोल हम लोग पढ़ते क्यों, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। डाइपोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग कोई भी मटेरियल लेते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमेशा डाइपोल फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर पे इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या बनाएंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। एक माइनस और एक प्लस है, ये माइनस और प्लस क्या बनाएंगे, एक डाइपोल बनाएंगे, है ना। तो ये माइनस प्लस एक डाइपोल बना रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल है। जो भी मटेरियल आप कंसीडर करते हो उसमें डाइपोल्स होता है, इसलिए हमें डाइपोल के बारे में पढ़ना चाहिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हमने क्या बोला कि कोई भी मटेरियल है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। क्लियर? तो डाइपोल का डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप लोगों को खुद से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाइपोल, कौन कौन से डाइपोल होते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग समझ लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
का जो सेंटर है, मान लो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये है, अगर उसके बीच में कोई सेपरेशन है तो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। उस डाइपोल से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अब ध्यान से देखते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों का जो सेंटर होता है, दोनों का जो सेंटर अगर सेम हो, दोनों का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अगर सेंटर सेम हो तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका यह मतलब है कि अगर दोनों चार्ज का सेंटर अलग अलग होगा तो पोलर होगा, अगर दोनों चार्ज का सेंटर सेम होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको पोलर क्यों बोला? पोलर इसलिए बोला क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो गए हैं। पोलराइज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग पोजीशन पे है। ऐसा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही साथ है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही साथ है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइजेशन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए हैं तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। इसलिए हमने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर से डिफर करता है, मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंस है, तो वो कौन सा कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पोलराइज्ड हो गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट ये है, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कभी भी पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर सकता है? लेट्स सी। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन। मतलब अगर ये प्लस है तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने बोला ये माइनस चार्ज कर दें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज आप रखते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करती है, इस पे इधर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती है, और नेगेटिव चार्ज रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इससे पता चलता है ना? तो हमने क्या बोला कि अगर मान लिया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे, मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगी। कब आएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो जैसे ही आ जाएगी इसका मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। सेपरेशन होने का मतलब क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया है वो आपको याद रहना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज नॉट सेम, द मॉलिक्यूल्स मेड बाय दोज डाइपोल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ द डाइपोल whose positive charge center and negative charge center coincide is known as non-polar molecules. Can non-polar molecules be converted into polar molecules? Yes, it can be converted into polar molecules in the presence of electric field. Have you got my point? So with this हम लोग क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लिए कि यहाँ पर पोलर। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर होता है, H2O, है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है CH4 एंड CO2। ये आप लोग याद रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल H2O एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल CH4 एंड CO2। क्लियर? अब हम लोग क्या है, यहाँ पर डाइपोल ही पढ़ रहे थे। डाइपोल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम पोलरिटी, सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट पोलरिटी सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस t। फिर से डाइपोल में हम लोग को एक और टर्म पढ़ना है। कुछ थ्योरी पार्ट है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। डाइपोल में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़ना है। वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? डाइपोल में एक पार्ट है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P वेक्टर। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स सी, जब भी आपको बोला जाएगा मोमेंट, है ना,
याद रखिएगा, मैंने बोला मोमेंट ऑफ द फोर्स। जब आप मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हो तो आप क्या लिखते हो, आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स लिखा तो फोर्स के साथ आर क्रॉस लगाया गया। लेकिन अगर मैंने बोला मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम है ना, तो क्या लगाएगा, इस मोमेंटम के साथ, पी को मोमेंटम बोलते हैं है ना, मोमेंटम के साथ आर क्रॉस किया गया। क्लियर है? जब हमने मोमेंट ऑफ द फोर्स बोला तो फोर्स के साथ आर क्रॉस किया गया। मोमेंट ऑफ द मोमेंटम बोला गया तो हमने क्या, पी के साथ, पी मतलब मोमेंटम, पी के साथ आर क्रॉस किया गया। क्लियर? अगर मैंने बोला ना मोमेंट ऑफ द मास, तो आप क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ द मास, मोमेंट ऑफ द मास, जब मैं आपको बोलूं तो आप क्या लिखते हैं, आर। लेकिन ये p वेक्टर क्वांटिटी, r भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्रॉस आ गया, लेकिन मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं r इंटू एम। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब r इंटू मोमेंट ऑफ द मास लिखा तो r इंटू एम। अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ द चार्ज, आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ द चार्ज, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे r क्रॉस q। लेकिन Q स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ क्रॉस का टर्म नहीं आएगा। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी आते हैं तभी क्रॉस लगता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R इंटू क्यू, सिंपल। और मोमेंट ऑफ द चार्ज को ही बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मोमेंट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन एंड द चार्ज। अब ध्यान से देखिए क्या है, मान लिया जाए हमारे पास एक डाइपोल है, इसकी चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और इसकी चार्ज क्या है, ये जो है ये माइनस क्यू है ना, यहाँ पे वेरी गुड, ये माइनस क्यू है। इनके बीच का सेपरेशन, अगर मैंने बोला इनके बीच का सेपरेशन 2L है, 2L है ना, तो ये जो सेपरेशन, यहाँ R क्या इंडिकेट कर रहा है, सेपरेशन। सेपरेशन किसके किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। तो सेपरेशन कितना है, 2L। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2L। लेकिन L क्या होता है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2L इंटू क्यू। मतलब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू। 2L इज द सेपरेशन, मतलब R इज द सेपरेशन। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब L अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहां पर अगर मैंने बोला ये प्लस है और ये माइनस है, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने D बोला होता तो फिर आप डाइपोल मोमेंट क्या लिखते, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, यहां पर लिखते D इंटू क्यू। क्लियर है? D एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आप Q इंटू D लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करता, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करता, आप क्या लिखते हैं, 2L इंटू क्यू लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, R इंटू क्यू लिखते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब डाइपोल मोमेंट of any dipole can be defined as the product of charge and the separation between the charges. Have you got my point? It can be defined as the product of charge and the separation between the charges. That's all. Dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इनको बीच का जो सेपरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन बताया मैंने। फिर से कुछ थ्योरी पार्ट है, फिर से मैं उस थ्योरी पार्ट को, थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर हो सकता है डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करें। एक थ्योरी पार्ट है कि यहाँ पर दो टर्म है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, जो मैंने बोला है डेफिनेशन वो आप लोग खुद से लिख लेंगे, है ना। एक एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, मान लिया जाए। क्लियर है?
ये प्लस क्यू और ये क्या है माइनस क्यू। इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को ही हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, डाइपोल में जो दो चार्जेस हैं उन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन। मतलब इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सियल लाइन कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा एक्सियल लाइन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये लाइन हमारा एक्सियल लाइन। वेरी गुड। इस डाइपोल का इस लाइन का जो सेंटर है वही डाइपोल का सेंटर कहलाएगा। मतलब ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर? तो आप बोलोगे कि इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को तो एक्सियल लाइन बोला, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन मतलब एक्सियल लाइन पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो जो लाइन है वो हमेशा सेंटर से पास करना चाहिए। कहां से पास करना चाहिए? सेंटर से पास करना चाहिए। मतलब कि एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन and passing through the center of the dipole is known as equatorial line. Have you got my point? मैंने यहां पर क्लियरली ये समझाया है कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उन दो चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है उसको हमने एक्सियल लाइन बोला। और उस एक्सियल लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो सेंटर से पास कर रही है उसे हमने इक्वेटोरियल लाइन बोला। हमें क्या पढ़ना है? एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या फिर इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि चलो कि एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड over the axial line and what will be the direction of electric field over the equatorial line। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट, डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग these two charges is known as axial line. The line perpendicular to the axial line and passing through the center of the dipole is known as equatorial line. अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओवर द एक्सियल लाइन। सो मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। इसको माइनस क्यू मानते हैं और इसको प्लस क्यू मानते हैं। क्लियर? और ये एक्सियल लाइन है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने बोला इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर ही इसका पोजीशन कहलाता है। डाइपोल का सेंटर इसका पोजीशन कहलाता है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका जो सेपरेशन है वो R है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मैंने बोला दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है। तो मैं बोलूं कि ये सेपरेशन कितना है L और ये सेपरेशन कितना है L। वेरी गुड। मैं बोलूं कि यहां से सेंटर से लेकर यहां तक जो सेपरेशन है वो कितना R। इन दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L। तो मैं बोलूं कि इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आप बता दोगे ये सेपरेशन कितना R और ये कितना L, तो ये कितना हो गया R प्लस L। वेरी गुड। मैंने बोला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, हैव यू गॉट माय पॉइंट? सॉरी, मैंने थोड़ा यहां मिस्टेक कर दिया। इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, इस चार्ज से लेकर इस चार्ज के बीच का, इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना, ये टोटल R है और ये L है, तो ये क्या होगा R माइनस L। वेरी गुड। इस पॉइंट से लेकर इस चार्ज के बीच का सेपरेशन, अगर यहां से लेकर R है और यहां से लेकर L, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा R प्लस L। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब हमें क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से होगा। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा
टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मैं आपसे बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है। तो मैं आपसे पूछूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, किसकी वजह से ज्यादा होगा, पहले ये देखते हैं। ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना, r माइनस एल, लेकिन इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना, r प्लस एल, मतलब ये सेपरेशन ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा, मतलब E प्लस क्यू ज्यादा है और E माइनस क्यू क्या है, कम है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अच्छा, माइनस क्यों लिखा, ये आपको समझ में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो अभी हम लोग क्या करें, E प्लस क्यू निकाले और E माइनस क्यू निकाले। तो E प्लस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग लिखे E प्लस क्यू की वजह से, E प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, K इंटू क्यू, K इंटू क्यू, चार्ज कितना है Q, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन स्क्वायर, और E माइनस क्यू की वजह से, E माइनस क्यू की वजह से के क्यू, मैग्नीट्यूड सिर्फ बात कर रहे हैं, के क्यू, सेपरेशन कितना है, यहाँ भी क्यू ही है माइनस क्यू है, सेपरेशन यहाँ से यहाँ के बीच का सेपरेशन कितना है, R प्लस एल, तो हमने क्या लिखा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमें मिल गया, नेट में हम लोग पुट कर देंगे। इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर नेट लिखा, E प्लस क्यू इज E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, है ना। तो क्या लिखे, के क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, के क्यू कॉमन है इसलिए के क्यू हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, अब मैं यहाँ पर बोलूँ, इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया, के क्यू, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं अभी डेरिवेशन करूंगा, यहाँ पर समझ लेते हैं डायरेक्शन। माइनस क्यू की वजह से इधर और प्लस क्यू की वजह से इधर, किसकी वजह से जाता है, प्लस क्यू की वजह से, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर, ये डाइपोल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब ऐसे जा रही है, प्लस क्यू ज्यादा है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और माइनस क्यू की वजह से कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। इसलिए हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर दिया जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। जस्ट रिमेंबर दैट कि डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू। अभी इसको हम लोग ब्रेक करें तो क्या होगा, ये नेट कहाँ निकाला हमने, एक्सियल लाइन पे, जस्ट रिमेंबर दैट, एक्सियल लाइन पे के क्यू। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर, तो माइनस 2RL प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर तो है, सो के क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसल, 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू के इंटू
2k इंटू 2l इंटू क्यू, ध्यान से देखिए वही लिखा है मैंने इन दोनों को ब्रेक करके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जो डाइपोल होता है, डाइपोल हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो सेपरेशन हमें दिखता नहीं है, 10⁻⁻10 में होता है, 10⁻⁸ में होता है। तो वो जो सेपरेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन होता है दो चार्जेस के बीच, वो बहुत कम होता है। मतलब जो हमने दो चार्ज के बीच का सेपरेशन लिया था वो क्या लिया था? 2l लिया था। ये -q और ये +q, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2l था। तो 2l मतलब l, यहाँ पर l जो है, l तो इसका हाफ, लेकिन ये सेपरेशन अपने में ही बहुत छोटा है और उसका हाफ ले तो और छोटा हो जाएगा। मतलब ये l जो है इस r के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, मतलब r इज मच मच ग्रेटर देन l। तो अगर ग्रेटर देन l है मतलब l स्क्वायर क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल होगा तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो बचेगा क्या? 2k 2l3। ध्यान से देखिए, ये यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट आप क्या बोलोगे? ध्यान से बोलना। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? 2l, मतलब 2l3 इज द डाइपोल मोमेंट। सो 2l3 क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमने लिखा, मैग्नीट्यूड। यहां पर l स्क्वायर क्या है? नेग्लिजिबल है। l स्क्वायर अगर नेग्लिजिबल है, वेरी गुड, मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे, ये r है, ये मिसिंग है, ये r मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये r, वेरी गुड। तो ये एल स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो ये पार्ट नेग्लिजिबल, आर स्क्वायर टू द पावर 2 मतलब r टू द पावर 4। सो r से यहाँ कैंसिल, r टू द पावर 3, मतलब क्या हुआ? 2kp डिवाइडेड बाय r3। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब मैंने आपसे पूछा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे वो कितनी है, तो 2kp डिवाइडेड बाय r3 है। r इज द सेपरेशन इन बिटवीन डाइपोल, डाइपोल का पोजीशन उसका सेंटर होता है, तो r is the separation in between the center of the dipole and the point where we are going to calculate the electric field. P is the dipole moment. डाइपोल मोमेंट यहाँ पर मैंने सेपरेशन 2l माना था, इसलिए डाइपोल मोमेंट 2l इंटू क्यू होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या है? 2l इंटू क्यू। तो 2kp डिवाइडेड बाई rq इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से यहाँ पर पढ़ा? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ओवर द एक्सियल लाइन। क्लियर है? इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the electric field over the equatorial line. So with this I would like to conclude my lecture. In next class we will come with some more concepts. Okay, thank you.